Okay, now, first model. Can I have another mic here, please? Can I have one more mic? Congratulations on winning. Okay. What I'm going to do for you is I'm going to give you the opportunity of asking me a question, and any question, and I will answer you, no matter what the question is. Okay. You can ask me anything. ये मैं opportunity किसी को नहीं देता हूँ. I don't talk to the press about it. Please make sure that you make that question count. But whatever you ask me, I will answer. Okay. No rules. Go ahead. Good evening, sir. Good evening. My name is Garvat, and I'm going to ask you one question. Do you think you have got the guts to become a roadie? I will answer it differently. I would not want to be a roadies contestant. I wouldn't, because मुझे पता है कि जो शो बना रहा है वो इतना कमीना है. वो गंजा पागल है और वो मेरी ऐसी की तैसी कर देगा वो शो के अंदर. इसलिए मैं कंटेस्टेंट नहीं बनना चाहता, क्योंकि मुझे मेरा गुस्सा इतना डेंजर है कि मैं कभी कभी खुद से डरता. Thank you, lady. Any question that you want to ask? Anything? सर, आप इतना गुस्सा करते हो, उसे कंट्रोल कैसे करते हो? वही तो प्रॉब्लम है, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ. इसके लिए मेरे को हेल्प की ज़रूरत है. मुझे बोला गया कि एंगर मैनेजमेंट क्लासेस लो. हाँ? Mountain Dew, डर के आगे जीत है. No. मुझे कंट्रोल करने की आदत डालनी है. मैं चाहता हूँ कंट्रोल करना, और इंशाल्लाह अगले साल करूँगा, कंट्रोल करूँगा. नो मोर एंगर, नो मोर एंगर. We are wishes. Thank you so much. Hello sir. Hi. So my question is that अगर आप जिन पार्टिसिपेंट्स और कंटेस्टेंट्स को हैमर करते हो सामने बिठा के, अगर आप उन पार्टिसिपेंट्स की जगह होते और आपके सामने लाइक समथिंग दूसरा रघु बैठा होता, वो आपको उसी तरह हैमर कर रहा होता, आपका क्या रिएक्शन होता? आपको ये गलत फहमी है कि मैं किसी को हैमर करता हूँ. ऐसा कुछ नहीं. हमारी बात हो रही होती है आपस में, और कई बार गर्मा गर्मी हो जाती है. अगर सामने वाले बैठे बंदे के पास एक पॉइंट है तो मैं उस पॉइंट को एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक है. अगर कोई मेरे पास फालतू में चिल्ला रहा है, then there'll be a problem, obviously. But I would try and understand why he's screaming at me. That would actually be my reaction. Thank you, people. All the best. Congratulations for winning. What I'm gonna do is I'm gonna now open the mic up. I'm gonna pass it around with you guys. Please ask me whatever you want. Since these guys are the winners, I was happy to be on stage with you and talk. Okay? Thank you. Sir! Oh, we love you, sir! Sir! अरे मुझे पूछ लेना यार. ऊपर उठा भाई. यार क्या बोल? सर, मुझे ये पूछना है सर कि आपको मतलब ये लुक का वो आइडिया कहाँ से आया अपने? ये सवाल कुछ देर पहले मुझसे पूछा गया था. I'll tell you the answer is very simple. अभी सुन लो यार, क्वेश्चन पूछ लिया तो. होता क्या है कि there is a condition among males called male pattern baldness. मतलब यंग एज में बाल झड़ जाते हैं. उसका रीजन है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है बॉडी में. टेस्टोस्टेरोन इज अ मेल हार्मोन. ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ एग्रेशन. ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ लिबिडो. ओके. आई एम सपोज टू बी an angry horny guy. I'm supposed to be. Okay, supposed to be. So because of excess testosterone, I get very angry and I have lost my hair. It's not a look. I just lost my hair. It's that simple. Yeah. It's not an idea that one day I got up, ooh, why don't I shave my head? It's not like that at all. Thank you. Hey, can any of the ladies ask a question, please? He is the man who जिसको mic दे देगा. Anybody has a question? Partiality, soft corner. Sir, don't you think roadie is the platform to be an actor? One second. Yeah? Sir, roadies is a platform to be an actor? Not at all. It's actually the
platform to stop acting. And actually, it's easy to act, you know. It's easy to pretend to be somebody else, somebody who's cooler, somebody who's better looking, has better clothes, and dances in Switzerland. It's really easy. It's really difficult to be yourself. And this platform is the opposite of being an actor. This platform is to stop acting and start being yourself. That's the answer. Can I have some water, please? Ben, chup raho yaar. Who's asking me the next question? The mic has to be given, right? You know what? I'll tell you. हेलो सर. हाँ. सर ये जो आपका रोडीज का है, ये आपका प्री प्लान नहीं होता, मतलब जो भी होता है इंस्टेंटेनियस होता है, जो आपका एपिसोड है. मैं thank you for asking this question. I want to answer this. Please be patient और मेरी बात को समझो, ठीक है? कई लोग सोचते हैं कि स्क्रिप्टेड. स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? स्क्रिप्ट का मतलब वो है जो एक एंकर पढ़ के बात कर रहा है, या एक डायलॉग है जो कोई डायलॉग राइटर लिख रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. जैसे हमारी आपस में अभी बात हो रही है ना, ये कैसे हम स्क्रिप्ट कर सकते हैं? मुझे कैसे पता कि कौन सा आदमी कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, और मैं अगर उससे जवाब दूंगा तो वो क्या बोलेगा मुझे? ये स्क्रिप्ट नहीं हो सकता, ठीक है? इंस्टेंटेनियस यस, एक लेवल पे. रोडीज का जर्नी शुरू करने से पहले मेरी टीम पूरी जर्नी खुद करती है. सारे टास्क मैं खुद करता हूँ. ये टेस्ट होते हैं, मगर उस सिचुएशन के अंदर क्या हो सकता है ये कोई प्लान नहीं कर सकता. ये वहीं का वहीं होता है और वहीं का वहीं हम शूट करते हैं. I answered your question. It's not scripted at all. Wait. After the boys, one girl, and then boys. Yeah. That lady over there can. Yeah. Raise your hand. Yeah, you. Raise your hand. थैंक यू सर. मुझे सर मत बोलो, प्लीज. सर मत बोलो. My name is Raghu. I'm not a teacher. सर बोल के मुझे हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि मैं गंजा हूँ. मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ सर. मतलब सॉरी, हम लोग पढ़ाई के में भी मतलब क्षेत्र में सबसे आगे है, मतलब हर क्षेत्र में आगे निकलना चाहते हैं. तो रोडीज के क्षेत्र में भी ये तीनों पार्टिसिपेंट्स आगे हैं. तो सर आपसे एक क्वेश्चन है कि ई की पावर एक्सेस कर क्या इंटीग्रेशन आप बता सकते हैं क्या? ई की पावर एक्सेस कर. मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ अपनी लाइफ का, ठीक है? मैं बहुत जल्द एक किताब लिखने वाला हूँ, उसमें ये इंक्लूडेड है. ये सच बात है, ठीक है? मैं एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल से हूँ, उसका नाम है DTE. मैथ्स में मेरे फर्स्ट टर्म का स्कोर था 0. ठीक है? मेरे पापा हिल गए. वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हिल गए. कहते 0 कैसे कोई आदमी ला सकता है? 0 कैसे? गलती से आधा मार्क तो मिल सकता है, गलती से 0 कैसे लाया तू? पिटाई. ठीक है? फिर मैंने कहा पूरी मेहनत करूंगा. मैं एक्चुअली एक लेटर लिखा टीचर को और उनके लेटर बॉक्स में छोड़ के आ गया कि मैम आई एम सो सॉरी, आई डिसअपॉइंटेड यू. नेक्स्ट टर्मिनल देखना, मेरी प्रोग्रेस को देखना. नेक्स्ट सेकंड टर्म आई गॉट 1. ठीक है? ऑब्वियसली 11th में मैं मैथ्स में फेल हो गया और केमिस्ट्री में. राजीव भी मैथ्स और केमिस्ट्री सेम सब्जेक्ट्स में फेल हुआ. और the answer to your question is I don't care what that square is. I don't care. मेरे लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता. Thank you. सर आई एम सॉरी रघु सर, आपको आइडिया कैसे आया? आई मीन रोडीज शुरू करने से पहले आपका क्या इंसिडेंट था जिससे कि आपको एकदम से इतना बड़ा गेम शो जो भी मतलब है ये? I'll tell you. आइडिया एक्चुअली शो का कहाँ से है पता है? हीरो होंडा वाज लॉन्चिंग करिश्मा इन 2003. They wanted a nice show where young people are seen riding the bike all over India. बस यही था, ठीक है? बट ये कोई एक इंसिडेंट नहीं हुआ मेरे साथ. मेरी लाइफ के साथ जितने भी इंसिडेंसेस होते हुए आए हैं, I was able to draw on that and put situations. रोडीज की जो फिलॉसफी है वो मेरी थिंकिंग है. मुझे
ऐसा लगता है कि ह्यूमन बीइंग्स आर नॉट गुड पीपल, दे आर बैड पीपल विद अ लिटिल बिट ऑफ गुड। मैं अच्छाई में ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि ये एक ढोंग है जहाँ पर सोसाइटी में से थोड़ा सा जैसे कम्युनल राइट्स होते हैं, ठीक है, एजुकेटेड पीपल पागल जानवरों की तरह एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है। दैट इज ह्यूमन नेचर एंड दैट इज व्हाट आई वांट टू शो, दैट हमारी जो अच्छाई है, if it becomes difficult to hold on to that achai, then are you good or are you bad? That's what roadies is a test of. Yeah. It's the turn for the girls. So if I can have the mic back, is the mic here? File here. Where are you? There you are. Wanna see your aggression? How can we make you aggressive right now, right here? Hey, that's a bad idea. So, okay, wait a minute. It's weird. I'll tell you something. I'm very hurt. I'm disappointed. You guys think I'm all about aggression. I'm not. तुम्हें क्या लगता है मैं मेरी लाइफ में करता क्यों? मैं गुस्सा घूमता रहता हूँ। सर चाय, इस चाय में चीनी कम है। ऐसा नहीं है भाई, मैं जो काम करता हूँ, आई एम अ डायरेक्टर, आई मेक अ शो कॉल्ड रोडीज, ओके, दैट इज व्हाट आई डू। तुम लोग ना वो एग्रेशन पे फोकस करके यू मिस आउट द एंटायर थिंग। मेरे को ओके, द प्रेस पीपल, ओके, दे ऑलवेज आस्क मी वन क्वेश्चन, व्हाई डू यू स्क्रीम एट पीपल? आई आस्क देम, व्हाई हैव आई स्क्रीम्ड? दे डोंट नो व्हाई आई स्क्रीम्ड। हो सकता है somebody is talking about honor killings, okay, I have lost my temper, I have screamed, I have made my point very emphatically about honor killings, but उस conversation को, मेरे point को कोई याद नहीं रखता है, वो ये देखता है कि ये आदमी फिर चिल्ला रहा है। You get it? For me, can we please get past the aggression? Can we please forget the aggression and focus on what is being said? Can we please do that? Yeah? Thank you. The mic there. Go for it. Yes. I'm so sorry, I'm not a boy, but still it was my turn, so I asked you. Okay. So apart from being an actor, I mean a director right now, what were you before this? I mean, you've planned what you've achieved, or it was just destiny? Do you know how many television producers and directors there are in India? A few lakh. Okay? जो रोडीज के साथ हो गया, जो मेरे साथ हो रहा है, वो आज से पहले किसी के साथ नहीं हुआ। कोई आदमी सोच ही नहीं सकता कि वो ऐसा प्लान कर ही नहीं सकता इस चीज को। आई नेवर प्लान दिस, दे कैन नॉट बी प्लान। आई ओनली, a lot of people say I want to be a star, I want to be famous, and I always ask them, what do you want to be famous for? They don't know. They don't know they want to be a famous boxer like Vijender Singh, famous tennis player like Dev Varman, or anything like that. They say, I just want to be famous. You know, I don't want to be famous. My point is, fame, अगर आप अपने काम में बहुत अच्छे हो ना, तो फेम मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है? You can't focus on the fame. So I didn't plan for this. I really feel that आदमी अगर मेहनत से और सच्चाई से काम करता रहे over a lot of years, then this will happen. No, I didn't plan it. Thank you. Is it? Now it is up. It has to be a boy. मैं थोड़ा थक गया हूँ. Is that okay for you guys? Hello. Hi. Hi, Raghu sir. कहाँ Raghu. है? कहाँ है? Yeah, here I am. हाँ, yeah. Yeah, my name is Rishabh. Rishabh. Yeah. And I just want to ask you that कि आप हर शहर में ऑडिशंस लेने जाते हैं, आगरा कब आ रहे हो? Most probably Roadies 9. Most probably. I can't confirm. मैं पक्का वादा कर नहीं सकता हूँ. मैं बताता हूँ आपको. एक ऑडिशन सिटी सेलेक्ट करने में ना कई कंसिडरेशंस होती हैं. इसमें MTV का भी डिसीजन होता है बहुत. But I definitely, after seeing your energy, I want to come to Agra. Hopefully Roadies 9. Hopefully.
The answer is not enough. Who's giving me the next question? Come on, come on, I want to hear you guys. Somebody has a mic over there? Yeah. One second. अरे mic इधर है भाई. हाँ. Yes sir. तुम लोग. I have okay Raghu. I have a question कि आप जैसे रोडीज में एग्रेसिव हो, आप मतलब जैसे अब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हो रोडीज में, आप अपनी डेली लाइफ में भी वैसे ही हो अपनी फैमिली के साथ, या फिर पोलाइट? I'll answer you. I want to. रोडीज में मुझे केयरफुल होना पड़ता है क्योंकि वो एक टेलीविजन शो है, इसलिए मैं ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर सकता. I don't think abuses are good. I don't think abuses are bad. I think it's a part of language. मैं लाइफ में फैमिली के साथ ऐसे बात करता हूँ. Yes. My wife and I. This is very terms of endearment. जैसे baby, darling बोलते हैं, हमारे words कुछ और हैं. I think it's okay. What's the big deal? You know? क्या है इसमें इतना focus language पे क्यों करना है यार? Move on. You know? Is the mic back? Can somebody ask? तो ये बताइए, जो आपका तरीका है बंदों के बारे में जानने का विद अब्यूजिव लैंग्वेज एंड इन एग्रेसिव लैंग्वेज, क्या आप कोई दूसरा तरीका भी जानते हो या ओनली सिर्फ यही वे है कि मतलब जो भी आप जानना चाहते हो, मतलब हमेशा आप अग्रेसिव मूड में ही पूछते हो हमेशा, जनरली विद बॉयज? क्या मतलब यही एक तरीका है मतलब बंदों के अंदर की बात जानने का? सर बता दो. माय नेम इज अभिषेक राजपूत. अभिषेक राजपूत. मैं जो कहूँगा ना, मेरे को पता नहीं ये कहने का फायदा है कि नहीं, क्योंकि यू गाइस हैव मेड अप योर माइंड. तुम्हारे ना दिमाग में एक सोच बैठ चुकी है. मैं अभी कुछ भी कहूँ तुम मानोगे नहीं, बट मैं बताता हूँ तुम्हें. तुम में से कोई रोडीज के इंटरव्यू में नहीं आया अभी तक, ठीक है? जब तुम आओगे ना, सुनना यार, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें मेरी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है. सुन लो. आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग. ओके? जब आप आते हो, आपके सामने 2 या 3 लोग बैठे होते हैं. आपको टीवी में नहीं दिखता, बट उन 2-3 लोगों के सामने बगल में 2 कैमरे होते हैं. तुम्हारे पीछे 3 कैमरे होते हैं. ओके? बाहर एक और कैमरा होता है जिससे आप वीजे से बात करते हैं और फिर अंदर आते हैं. सुनिए मेरी बात. बहुत नेचुरल है कि उस कैमरा के लिए परफॉर्म किया जाए. हर कोई कैमरा को बहुत अवेयर होता है. वो ध्यान हटाने के लिए जब सिचुएशन इंटेंस हो जाती है ना, तब आप कैमरा के बारे में भूल जाते हो. आपको फोकस करना है सामने इस टेबल की तरफ जहां से ये इतना सारा तुम्हारी तरफ आ रहा है, ठीक है? अगर लोगों को, मैंने शुरू क्यों किया ऐसे बात करना, लोगों को लगता है कि ऐसी बातें टेलीविजन पे नहीं होती, इसलिए जब अगर मैं ऐसे कुछ वर्ड्स यूज कर दूं तो उन्हें पता चल जाएगा कि ये कॉन्वर्सेशन टेलीविजन के लिए नहीं है. ये कॉन्वर्सेशन 2 आदमियों के बीच में है. या एक रियलनेस आ जाती है. रियलनेस क्यों आती है? क्योंकि ये गालियां मैंने इन्वेंट नहीं करी है, आप सब यूज करते हो, लेकिन सवाल सिर्फ मेरे से पूछा जाता है, ठीक है? नाउ इसके बहुत, ये एक रीजन है. दूसरा रीजन ये है कि अगर बातें कर रहे हैं और क्योंकि ये स्क्रिप्टेड नहीं है, तो जो भी यू नो इन द हीट ऑफ द मोमेंट कई चीजें निकल जाती हैं. आई मेक श्योर दैट आई बीप देम और आई म्यूट देम. अब तो मैंने मुंह के ऊपर भी पट्टी लगाना शुरू कर दिया ताकि लोग लिप रीड भी ना कर पाए. इससे ज्यादा क्या करूं यार मैं, यू नो? नहीं, मेरे लिए हो सकता है किसी और के लिए कोई और तरीका हो, मेरे लिए ये तरीका है. या थैंक यू. मैं इस वक्त कोई फिल्म नहीं कर रहा हूँ, मैं रोडीज बना रहा हूँ. एक टाइम पे मैं एक ही काम कर सकता हूँ. I would like you to share your views on the position of women in the society, the respect that they are entitled to, your views, your personal views on this. Thank you. मैं 8 साल से ऑडिशंस में बहुत सारे शहरों में हजारों यंग लोगों से मिलता हूं और उनसे बात करता हूं कई टॉपिक्स पे. पोजीशन ऑफ वीमेन इन सोसाइटी इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स. You will be shocked that every city, every year,
people have the same point of view. Okay, you're the young people. You're not tomorrow's generation, you're today's generation, and you're going to influence tomorrow's generation. India is coming up with another generation of MCPs. लड़कों को क्या लगता है? I don't want to get into that again. Somebody asked me how to get me pissed off right now. This will get me pissed off, but I won't get pissed off. My point is, women are the world's largest minority. I don't know why तुम लोगों को कम समझते हैं. उसका रीज़न है, but I won't get into the reasons. यार, just try and change that. That's not cool, you know. Looking down on women is very uncool, and you don't want to be uncool, right? So don't do that. Yeah, thanks. Who's asking me the next? Hello, Raghu sir. I just want to ask, what is the difference between Raghu and Rajiv? How we can know that the person here is Raghu or Rajiv? You'll just have to take my word for it. Obviously बहुत differences हैं. We're twins, identical twins. Yes, बहुत similarities हैं, but बहुत differences हैं. एक साथ अभी आप नहीं पहचान पाओगे. अगर मुझे और राजीव को साथ में कई टाइम तक देखोगे, आप clearly बता सकते हो कि रघु कौन, राजीव कौन है. I can't, you know. और ये डिफरेंस जान के करोगे क्या यार? ये क्या क्वेश्चन है? Come on. The ladies here? Anybody? Where's the mic? Mic किधर है भाई? I'll tell you something. मैं ना अपनी सफाई देने की आदत नहीं है मुझे. ये जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, मैंने आज तक नहीं किया, खासकर प्रेस के साथ. मैं यहाँ आई वॉन्ट टू थिंक दैट मैं यहाँ अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने आप को अवेलेबल कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि आप मुझे समझ पाओ. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. और ये जो बातें हमारे बीच में रहे तो बेटर है. आप लोग वीडियो कैमरा शूट कर रहे हैं और ये कल यूट्यूब में लग जाएगा. दिस इज़ नॉट फॉर यूट्यूब, दिस इज़ नॉट फॉर फेसबुक, दिस इज़ फॉर यू एंड मी. या थैंक यू. या Hi sir. Hi, where are you? Hi. Hi. सर मुझे ये पूछना था कि हमेशा ये कहा जाता है कि कोई भी कंटेस्टेंट आता है, यू आस्क द क्वेश्चन, डू यू वांट फेम, दैट्स व्हाई यू आर हियर. अब कोई रोडीज में आ रहा है, उसे फेम तो मिलेगा, बट व्हाई डू यू गेट एंग्री अगर कोई ये कहता है कि फेम आपको मिल रहा है तो आप क्यों आए हो, इसी यही प्लेटफॉर्म क्यों चाहते हो? इसके बहुत रीजंस हैं. मैंने बताया था तुम्हें कि लोग फेमस होना चाहते हैं, लेकिन क्यों फेमस होना चाहते हैं ये नहीं पता होता. बी फेमस यार, वेरी गुड, बट अर्न दैट फेम. तुम जो फेम लेने के लिए आए हो ना, उसके लिए मैंने 8 साल मरा हूं. मैं कैसे ये शो बना मैं जानता हूँ. और इतनी आसानी से तुम मतलब सिके रोटियां तुम खाना चाहते हो विदाउट डूइंग एनीथिंग. तुमने किया क्या लाइफ में यार? क्या लाइफ में तुम्हारा स्टैंडर्ड क्या है? तुम लोग क्यों आ गए यहाँ पर? ऑफ कोर्स इट पिसेस मी ऑफ. फेम चाहिए, दैट्स फाइन, बट दैट कांट बी दी ओनली मोटिवेशन. तुम लोग किसी भी चीज़ में काम करोगे और उसमें फेम को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए वो काम करोगे, आप कभी सक्सेस नहीं होगे. नेवर. तुम काम पे सक्सेस पे जाओगे तो फेम आएगा. बट somebody tells me I want to succeed, I respect that. Somebody says I want to be famous, I say go out and try. Don't waste my time. Yeah, thanks. I'll do one more question, okay? No, not that. Bad day. My life is full of it, man. Raghu. The worst day of my life was 26. Raghu. Yeah, man, I'm on the top, yeah. हाँ भगवान. Right now I'm on 9 cloud, man. बोलो. क्या संदेश है हमारे लिए? I want to ask you a question. I want to ask you a question. Thank you. You're most welcome. Yeah, come on. Where are you? Yeah. हाँ. My question is that what is your idea about a perfect propose? What should we do? Okay. Firstly, मैंने आज तक लाइफ में कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाया. मैं बहुत शाय आदमी हूँ. But I did. I'll tell you something that again, please switch off your cameras because I'm going to tell you something that is very personal to me. If you are not, then I won't tell you. Okay, this is not for people. Again, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ठीक है?
मैंने लाइफ में, मैं रोमांटिक आदमी नहीं हूँ, मैंने कुछ रोमांटिक किया नहीं, बट एक चीज़ की है मैंने, आई प्रपोज टू माई वाइफ. I'll tell you how. Before इंडिया में ना रिंग्स का सिग्निफिकेंस ज़्यादा है नहीं. इन द वेस्ट, इन क्रिश्चियनिटी ऑल्सो there's a significance of a wedding ring being exchanged. यहाँ पर क्या होता है, मम्मी पापा मिलते हैं और वो कुछ साड़ी और कुछ गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं भगवान के सामने, एंड दैट्स योर engagement pretty much, रोखा या जो भी बोलते हैं, right? But my wife wanted a ring. It was very important for her. So I bought her a ring. I didn't know how to buy a ring. I asked my friends. There is camera still being. That's not cool, yaar. I'm talking to you on faith, right? Please. Okay, that's not cool, right? But the romantic thing is not the fact that I bought a ring. The romantic thing is that I took her to Goa just to give that ring. And that day, उस beach में कोई भी नहीं था. That was my beach. That was my sunset. That was my ocean. That was my moment. And she couldn't say no. Thank you. कभी भी लड़की को प्रपोज करना, do it with respect and she'll be okay. बैठने वाले. हाँ? First day.